Assalamualaikum viewers, I am Iqra Yasin and you are learning English grammar with me. So our today's topic is indefinite pronouns. So we are talking about pronouns and different kinds of pronouns. So indefinite pronouns. So first let's understand what indefinite means. ठीक है, indefinite का मतलब क्या है? Indefinite means something not sure. ठीक है, something not definite. That means we are unknown. That means कि we don't know about that thing. ठीक है, हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते. Not sure, not definite. So indefinite pronouns in English grammar we have some indefinite pronouns like anything, everybody, somebody, someone, everything, something, anyone, no one. ठीक है, neither, either, each. ठीक है, these are some indefinite pronouns we have in English grammar. So now let's understand with some examples or paragraphs how we can use these indefinite pronouns in our English grammar, in our sentences, in our daily words, and in our paragraph as well. So now you can see indefinite pronoun definition. An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to a particular person, place or a thing. ठीक है, indefinite pronoun किसे कहते हैं? Basically it is a pronoun that does not refer to a particular person, place or thing. कि किसी खास person, place या thing को refer नहीं करेगा. ठीक है, that means we are talking in general. ठीक है, हम generally कोई बात करेंगे तो वो हमारे पास indefinite pronoun के अंदर आएगी. Let's understand with example. अब इसको मिसाल से समझते हैं कि किस तरह से हम indefinite pronoun को यूज करते हैं. Does anyone know the story of Midas? ठीक है, you can see in this example does anyone basically anyone is indefinite pronoun. ठीक है, हमारे पास anyone क्या है? अब anyone क्या है? anyone किसी specific person को या किसी specific place को या thing को इस sentence में refer नहीं कर रहा. ठीक है, anyone क्या है? does anyone know the story of Midas? अब story of Midas की बात हो रही है but उसके अंदर क्या specifically किस character की बात हो रही है या किस scene की बात हो रही है ऐसा नहीं बताया गया. that means कि in general बात हो रही है. ठीक है, ओके. मोस्ट इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है, कुछ हमारे पास सिंगुलर होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और सम वी हैव प्लूरल फॉर्म्स एज वेल. ठीक है, ओके. सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस you can see on the screen. Another, we finally move to another apartment. Anyone, I swear I won't tell anyone this secret. I swear I won't tell anyone this secret. मैं किसी को भी ये सीक्रेट नहीं बताऊंगा. ठीक है, अब किसी में भी सब की बात आ जाती है. anyone मतलब इसमें किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा. anything is possible if you believe, ये भी एक जनरल सेंटेंस है. ठीक है, anything is possible if you believe, अगर आप बिलीव रखते हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है. ठीक है, सो इट्स जनरल स्टेटमेंट. Each company is fighting to protect its own commercial interest. This is also in general. Either one will be fine. Enough is enough. ठीक है, this is also everyone cheered for the at our school concert. ठीक है, everything is going as planned. Okay, let's move on. Now you can see singular pronouns. Some are, as I told you earlier, this thing कि some are singular but some are plural as well. So singular हमारे पास कौन से आ जाते हैं? anybody, anyone, anything. ठीक है, अब anybody के साथ देखें किस तरह से सिंगुलर है. अच्छा, सिंगुलर में you have to remember this thing when you write singular प्रोनाउंस. ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम क्या करेंगे? एनीबडी के साथ हम जैसे सिंगुलर प्रोनाउंस हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ एस लगेगा. ठीक है, सिंगुलर में हम एस या ई एस लगाते हैं. जैसे एनीबडी नोज. ठीक है, एनीबडी नोज, ये हम हमारे पास इसको शो इस बात को करेगा कि ये सिंगुलर है. ठीक है, यानी कि हम किसी की सिंगुलर होकर बात कर रहे हैं. ठीक है, एनीवन फील्स, एनीथिंग लुक्स. ठीक है, नो वन वॉन्ट्स, नो बडी नीड्स, नथिंग वर्क्स, कुछ भी काम नहीं कर रहा, नथिंग वर्क्स. मतलब हम जनरली बात करते हैं ना, तो जनरल जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास सिंगुलर में आ जाएगी. एवरीबडी सीज, हर कोई देख रहा है. एवरीवन सीम्स, एवरीथिंग डज, समबडी लिव्स, समवन स्टार्ट्स, समथिंग स्टेज. ओके, लेट्स मूव ऑन.
some indefinite pronouns are both singular and plural depending upon the sentence. ठीक है, अब कुछ क्या है वो डिपेंड करते हैं सेंटेंस पे, क्या सेंटेंस की टाइप होगी, माइट बी सेंटेंस में सिंगुलर की बात हो रही होगी या प्लूरल की बात होगी, या तो स्टेटमेंट इन जनरल होगी या फिर स्पेसिफिक होगी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट, द सेंटेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, ऑल, सम, नन। अब इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली कभी तो हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और कभी प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सम मोर एग्जाम्पल वी विल सी इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन की ये एग्जाम्पल देखिए, आपको इससे बहुत अच्छा समझ आएगा। समवन इज एट द डोर, ठीक है, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। अब यू डोंट नो हु इज एट द डोर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने क्या कही कि समवन इज एट द डोर, कोई है दरवाजे पर, इट मीन्स यू डोंट नो। अब ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, इस तरह से हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हम इसके बारे में श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट इट, ठीक है। आई डोंट नो हु इट इज़, इट्स नॉट डेफिनेट हु इज़ देयर, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि डेफिनेट नहीं है, ये श्योर नहीं है कि वहाँ पे कौन है, इसीलिए हमने कहा समवन इज एट द डोर, कोई है दरवाजे पर। लेट्स मूव ऑन, सम मोर एग्जाम्पल्स। अब ये देख लें आप, रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक किए बगैर वो रेफर करता है किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को या किसी भी थिंग को। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, ठीक है। अब आई हैव ईटन, इसमें किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसमें विदाउट स्पेसिफाई ये कहा गया है कि आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मेरे फ्रिज में जो कुछ है वो मैंने खा लिया है। आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए। आई नीड टू फाइंड समथिंग, एनीथिंग वुड बी ओके, ठीक है। दीज आर ऑल जनरल स्टेटमेंट्स, सो दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसको ध्यान से आप फोकस के साथ अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से इनडेफिनेट प्रोनाउंस को हम इंग्लिश ग्रामर में इनका हम ध्यान से यूज़ कर सकते हैं। Okay, now we see in paragraph how indefinite pronouns are used. ठीक है, I went on another trip last week. Few have visited the park I traveled to. Although everyone visits Yellowstone, I saw something moving in the woods but could not see it clearly. Then there was more movement and everybody saw it. Now you can see under everybody. Everybody here is indefinite pronoun. Either could have been a bear or both were just the wind. Nobody could figure it out. But we had many guesses. The scenery there was gorgeous. One could see for miles. Anybody would love that one view of the valley because nothing is more beautiful. So these are some indefinite pronouns we have learned in today's lesson. ठीक है, आज के लेसन में हमने क्या सीखा, हमने indefinite pronouns का यूज़ सीखा कि किस तरह से हम indefinite pronouns को यूज़ करते हैं और ये क्यों होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, और किस तरह से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं और इनको किस तरह से सिंगुलर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। इसकी सम और एग्जांपल्स हैं, वी यूज़ इनडेफिनेट प्रोनाउंस टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर, ठीक है, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीवन, एवरीवन। सो होप यू विल लर्न today's lecture. So till then, next video, take care, Allah Hafiz.